So what is chemical reaction? Okay, so this concept we already discussed in previous lecture. Once again we are going to be just revise this chemical reaction. Okay, so what is chemical reaction? As per I told you in this that lecture, reactant and reagent. Okay, so simply they are the reactant. Okay, and then it react to each other and it convert into the product and byproduct. This is the standard format of the reaction, chemical reaction. Okay, but this change is accompanied by a redistribution of electron. Okay, so ये जो reactant convert into the product होता है, this all happen because of redistribution of electron. Conversion of reactant into the product means what happened? There is some bond is break, some bond is new bond is formed, and you will get reactant to product change. Okay, so this change is known as to the chemical reaction. But this bond breaking and bond making, in this process, what happened? There is a redistribution of electron. Okay, in bond breaking, there is a 2 electron in participating in every bond. So this during the bond breaking, this electron go away from to each other. They separate from to each other. Okay, and in case of bond formation, there is a 2 electron come close to each other. Okay, so this is called as a bond breaking and bond making process. So simply you can say in this process what happened? There is a redistribution of electron. Electron का redistribution वहां पे हमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये होता है redistribution of electron. तो ये redistribution of electron जो होता है, because of that there is a chemical reaction. Then organic reaction transformation take place through some defined step, है ना? So this chemical reaction जो होती है, as we know that about the SN1 and SN2, in a SN2 mechanism, reactant convert into the product through a single step. Okay, only one step is there, and in same step there is a bond making and breaking occur simultaneously. Okay, but in a second step, in a second type of mechanism is there. This is the SN1 mechanism. In SN1 mechanism, this reactant convert into the product through the intermediate. I mean, there is a 2-step reaction is there. In the first step, this reactant convert into the intermediate condition, and in the second step, this intermediate is attacked by the another reagent and it convert into the product. मतलब SN1 में क्या होता है? 2 स्टेप में रिएक्शन होती है ना? और SN2 की रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है ना? तो इसे हम क्या कहेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है ये अलग अलग स्टेप में होती है ना? कुछ रिएक्शन जो होती है ये सिंगल स्टेप में होती है, कुछ रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, कुछ रिएक्शन 5 स्टेप में होती है और कुछ रिएक्शन 10 स्टेप में होती है. तो अलग अलग स्टेप्स की अलग अलग रिएक्शंस होती है, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, बट इसमें और एक चीज होती है कि जितनी नंबर ऑफ स्टेप्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है उतने ही जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट की जो परसेंटेज ऑफ यील्ड होता है वो कम होता जाता है. ठीक है, तो जो ग्रीन केमिस्ट्री का होता है उसका रूल जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोगों को यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हमें वहां पे बनाना है, ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है, तो वहां पे हमें स्टेप्स जो है होती है केमिकल रिएक्शन की, तो उसे हमें कम करना होता है. जितनी कम स्टेप्स रहेंगी केमिकल रिएक्शन में उतना ज्यादा प्रोडक्ट हमें वहां पे और प्योरिटी वहां पे हमें देखने को मिलेंगी. तो ये होती है केमिकल रिएक्शन. देन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब ये जो स्टेप्स होती है रिएक्शन की, इस स्टेप्स को हम 1 by 1 सिस्टमेटिक वे में उसको मतलब राइट करते हैं, है ना, उसको डिस्क्राइब करते हैं. तो और उस डिस्क्राइब करना कह सकते हैं हम, you can say it is you provide the information in stepwise manner. You also say this is a stepwise representation of reaction. So this all process is known as to be the reaction mechanism. ठीक है, तो ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये भी हमें जो रिएक्शन किस तरह से हो रही है इसको हम स्टेप बाय स्टेप उसको स्टडी करते हैं. तो समझ में आया? तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग occur in the molecule. So there is a redistribution of electron and it produces the product. Second thing, it occur in a number of steps. It may be 1 step, it may be the number of steps.
but if you mostly you try to minimize the steps in the chemical reaction. कम से कम हमें steps को रखना है reaction में, because of that there is the yield of product and purity of the product it will be more. उसी के साथ में you represent this reaction, you write this reaction, you explain this reaction in a stepwise manner. This is called as to be the reaction mechanism. तो ये सारी चीजें जो है इसे हम chemical reaction में स्टडी करेंगे. देन रिएजेंट. ठीक है, रिएजेंट जो है रेडिकल, आयोनिक, दो टाइप के रिएजेंट हमें देखने को मिलते हैं. मींस जब रिएक्शन हम करते हैं तो हमारे पास में दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपाउंड्स होते हैं. एक होता है हमारा रिएक्टेंट, जिसके साथ में हम रिएक्शन करने वाले होते हैं, यानी कि उसको हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं. और सेकंड जो होता है वो होता है रिएजेंट. तो रिएजेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो आयोनिक हो सकता है या रेडिकल टाइप में हो सकता है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी रिएजेंट हो सकता है. ठीक है ना, वो भी हो सकता है. तो रेडिकल क्या होगा इसमें, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो उसे हम रेडिकल कहते हैं. आप लोगों को पता है, जो कि चेन रेडिकल मैकेनिज्म हमने स्टडी किया है आप लोगों ने 11-12 में. तो इसमें रेडिकल जो होता है, यहाँ पे देखेंगे हम क्लोराइड रेडिकल है ना, यहाँ पे इस तरह से. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑन द कार्बन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन हैविंग कार्बन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन is there, so this is called as to be the radical molecule. Okay. और उसके बाद में जो है आयोनिक. आयोनिक यानी कि दो टाइप के आयन हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी हो सकता है या नेगेटिव आयन भी हो सकता है. ठीक है, तो उसके बेस पे, ऑन द बेस ऑफ द टाइप ऑफ आयन, whether it is positive or negative. Okay, so we are going to be see whether it is carbocation. If there is a positive charge on the carbon, so this is called as a carbocation. And if there is a negative charge on the carbon, this is called as a carbanion. Okay, तो इसको और एक टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं. पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं. We called it electrophile. And if there is a negative charge, so this is called as to be the nucleophile. ठीक है, इस तरह से. अब what is the electrophile and what is the nucleophile? Can anybody tell me what is the electrophile or nucleophile? Dear student, hello, I am audible. हेलो, यस सर. हाँ, कोई कहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? हेलो, न्यूक्लियोफाइल डोनेट इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियोफाइल डोनेट इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड. ठीक है, तो इस तरह से होता है. न्यूक्लियोफाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. वेरी नाइस. बट वी आर सीइंग हियर न्यूक्लियोफाइल इज अ आयोनिक स्पीशीज. ओके, तो सिंपली न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. ओके, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. तो इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि ये क्या है, इसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा सिंपली, है ना. और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये फाइल यानी कि लविंग, यानी इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कहते हैं उसको, है ना. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अगर वहां पे होती है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इस तरह से. तो इलेक्ट्रोफाइल जो है, यहाँ पे हमें क्या, एक पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है. जो पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी है वहां पे, और इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग भी कहते हैं. ठीक है, तो ये एक जो है इस तरह के जो भी रिएजेंट होते हैं, ये कार्बोकटायन जब हम इसमें स्टडी करेंगे इंटरमीडिएट, तो ये रिएजेंट करके एक्ट होते हैं. ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल जो कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होने की वजह से इट डोनेट इलेक्ट्रॉन, है ना. इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा,
डोनेट करेगा तो ये होगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इस तरह से हम ये रिएजेंट को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो हम इसको सेपरेटली अच्छे से स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम केमिस्ट्री की स्टडी, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री, तो ये किस तरह से स्टडी करना है, तो वन बाय वन जब हम फंडामेंटल को अच्छे से समझेंगे, देन you can apply this all fundamental concept. So you will learn how to study and how to answer to the question asking on the chemistry. Okay, so इस तरह से हम एक एक कंसेप्ट को यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है इसको हम स्टडी करते हैं सेपरेट। ठीक है, ये तो रिएजेंट करके एक्ट होता है, नो डाउट, बट हियर वी आर स्टडीइंग सेपरेटली टू इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज व्हिच कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टी या किस तरह का वो किस तरह की स्पेसीज होनी चाहिए, तब जाके इट एक्ट हैज टू बी द इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो क्या होना चाहिए इसमें, ऑल पॉजिटिव चार्ज सिस्टम कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जहां जहां पे पॉजिटिव चार्ज हमें दिखता है वो सारे स्पेसीज जो होती है इट एक्ट हैज टू बी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जहां जहां पॉजिटिव चार्ज दिखता है, जैसे कि एक NO2 पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है, NO पॉजिटिव है ना, X पॉजिटिव, NH PH पॉजिटिव है ना, N2 PH पॉजिटिव, यहाँ पे ये देखो C पॉजिटिव चार्ज है ना, दिख रहा है ना, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H पॉजिटिव, दैट इज प्रोटॉन, दिस प्रोटोनेटेड H2 मॉलिक्यूल, देन अमोनियम, देन PH4। तो इस तरह से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां पे, इसी को हम इलेक्ट्रॉन लविंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंडिकेट करता है कि अगर वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, मींस इट इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। देन सेकंड इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर इलेक्ट्रोफाइल, हैलाइड और ग्रुप। देखो मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रोफाइल एक्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट, है ना। लेविस कंसेप्ट क्या कहता है, एसिड और बेस के बारे में होता है। तो लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट यू एक्सप्लेन द एसिड एंड बेसेस, यू डिफाइन टू एसिड एंड बेसेस, एसिड आर दोज स्पेसीज दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ एक्सेप्ट कर लेता है, उसे कहते हैं हम एसिडिक मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट, या इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसीज अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट। और सेकंड जो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज होती है, तो उसे कहते हैं हम बेस अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट। ठीक है, तो ये चीज होती है सेकंड, जहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं, जैसे कि BF3 है, BCl3 है, BBr3 है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें वैकेंट हमें ऑर्बिटल वहां पे स्पेस वहां पे देखने को मिलता है, जिस वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है यानी कि देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे डिफिशियंसी है तभी उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल करके एक्ट होते हैं। देन हैलाइड एटम इन which central atom has vacant d orbital। ठीक है ना, मतलब ये जो मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पर टेट्राक्लोरोसिलेन, तो इसमें ये जो सेंटर एटम जो हमें दिख रहा है, तो वहां पे डी ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है ना। अगर वैकेंट इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट ऑर्बिटल वहां पे देखने को मिलती है, तो वहां पे तो वैकेंट स्पेस है आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है ना, तो हम उसको कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है ना कहीं वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस स्पीशीज को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। देन इंटरहैलोजन कंपाउंड, हाँ इंटरहैलोजन कंपाउंड, जैसे कि दो हैलोजन मॉलिक्यूल एटम्स होते हैं और उसका बॉन्डिंग होता है। अब बेसिकली हमने Cl2, Br2, I2 है ना, तो इस तरह के मॉलिक्यूल तो हम देखते ही है, बट इंटर हैलोजन यानी कि एक दोनों हैलोजन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
बट होते हैं हेलोजनी। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ICl, अब ये ICl जो है both are the halogen, okay, and both are the more electronegative atom in periodic table, okay, but comparatively you can see there is the anti-bonding orbital of this bond CLI bond। तो ये जो anti-bonding orbital होती है इसकी, this is vacant। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होती है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस अवेलेबल है, आने के लिए स्पेस अवेलेबल होता है। तो इस केस में ये जो है इस तरह से CCl बॉन्ड, ये तो बॉन्डिंग है, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये वाली, ठीक है ना, इसको हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे। बट इसके बैक साइड में यहाँ पे जो होता है एंटी बॉन्डिंग होती है, दोनों साइड में भी हो सकता है नहीं होता ही है। तो ये जो एंटी बॉन्डिंग होती है इट इज वैकेंट, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से ये जो स्पेशीज होती है इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं, इसको भी हम इलेक्ट्रोफिलिक कह सकते हैं। लास्ट में जो है हैलोजन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये जो हैलोजन मॉलिक्यूल हमने यहाँ यही पे देखा है, देखो इस तरह की कंडीशन इसमें भी होती है, तो ये भी मॉलिक्यूल एज अ इंटरमीडिएट या सॉरी इलेक्ट्रोफाइल करके एक्ट होता है, ठीक है। देन कार्बोनिल सिस्टम आल्सो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोनिल, ठीक है ना, ये जो कार्बोनिल मॉलिक्यूल हम देखते हैं जैसे कि अल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, एसिड होता है, ईस्टर होता है, तो ये कार्बोनिल सेंटर है। कार्बोनिल यानी कि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन होता है। तो इस केस में ये जो कार्बन होता है ये कार्बन होता है पॉजिटिव चार्ज में, मतलब इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, ये कार्बन पे कितना होता है ट्वाइस पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से डेल पॉजिटिव होता है, डेल पॉजिटिव, बिकॉज देयर इज नो बॉन्ड ब्रेकिंग ऑकर, बट हियर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डिफरेंट इन बिटवीन टू कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन में जो है यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखाई देता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये जो पूरे बॉन्डिंग है ये जाएंगी ऑक्सीजन की तरफ, तो इस साइड में बनेगा डेल नेगेटिव चार्ज और इस साइड में बनेगा डेल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है तो इलेक्ट्रॉन डिफिसिट है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में है, ठीक है। उसके बाद में हम कहेंगे यहाँ पे क्या दिया है कि एसिडिक ऑक्साइड, जैसे कि CO2 होता है, SO2 होता है, ठीक है ना, एसिडिक ऑक्साइड जिसमें ये कार्बन जो होता है, अभी हमने ये कार्बोनिल का देखा, उसी तरह से इसमें भी वही कंडीशन होती है, और ये जो होता है ये +4 में कार्बन होता है, +4 में, है ना, 4 पॉजिटिव चार्ज होता है। ये भी ये क्या करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है ये वाला कार्बन, तो इस वजह से ये भी क्या हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। देन नाइट्रीन, सिंगलेट, कार्बाइन, तो सिंस हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और जिन जिन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है उन सभी को भी हम क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है इलेक्ट्रोफाइल की, कि उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज वहां पे होता है, जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होते हैं, जैसे कि BF3 है, BCl3, BBr3, AlCl3 भी होता है, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बट इट एक्ट्स टू बी द इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज according to the Lewis concept, it accepts the electron from the donor species, and that's why it is acts as to be the electron acceptor. And according to the Lewis concept, it is known as to be acid, or it is also known as to be electrophile. Then halogen molecule जो होता है उसमें halogen molecule की एंटी बॉन्डिंग जो होती है, जो यहाँ पे हमने देखी है यहाँ पे, तो ये एंटी बॉन्डिंग की वजह से ये जो है ये वैकेंट स्पेस अवेलेबल करती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, तो इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये एक्ट होता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल करके, ठीक है। उसी तरह से कार्बोनिल मॉलिक्यूल भी होता है, ये तो अच्छे से हम डिटेलली स्टडी करेंगे इन सेकेंड ईयर, थर्ड सेमिस्टर, फर्स्ट चैप्टर अल्डिहाइड एंड कीटोन,
तो उसमें अच्छे से स्टडी करेंगे। और यहाँ पे कार्बोनिल में और एसिडिक ऑक्साइड देखे हमने, जैसे कि CO2SO2 मॉलिक्यूल है, तो ये भी एज इलेक्ट्रोफाइल करके एक्ट होते हैं। नाइट्रीन एंड सिंगलेट कार्बाइन इज आल्सो एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल। सो आई होप you understand this concept. Okay, reagent, chemical reaction, carbon speciality, chemical reaction, reagent and electrophile. Okay, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझी होंगी। So if you have any question, so you can ask me, because I'm going to